Hello, my dear students. Good morning, Jai Shri Krishna, and Happy New Year to all of you. So, myself Raju sir, and I heartily welcomes to you in my educational YouTube channel, AIM Education. And currently, we are discussing about the biomolecule topic, and the chapter is chapter number 14, Biomolecule Standard 12. And our earlier lecture, we already discussed about the carbohydrates. Ready? And classification of carbohydrate. And today we are going to discuss about the nomenclature of carbohydrate compounds. हमें कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स का नाम कैसे देना होगा वो आज हम देखने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सफिक्स ओज especially O's suffix useful for all the types of carbohydrate compounds. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उन सभी के नाम के पीछे हमें O's suffix लगाना होगा. जैसे ग्लूकोज O's suffix, फ्रुक्टोज O's, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोज, रेफिनोज, मेलिट्रायोज, स्टेचियोज, रेहमनोज. All of this type of carbohydrates having O's suffix, right? So you can see here, carbohydrates class contain O's suffix in their name. For example, glucose, fructose, maltose, sucrose, lactose, right, etc., etc. But in this type of carbohydrates, we can divide into two different classified carbohydrate molecules. Some carbohydrate possess aldehyde functional groups in their structure, and another carbohydrates possess ketone functional group in their structure. मतलब कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और बाकी सब कार्बोहाइड्रेट जितने हैं उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. मगर एक बात जरूर याद रखना बच्चों, जिस किसी भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड होगा उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, और जिसमें कीटोन होगा उसमें एल्डिहाइड नहीं होगा. तो स्पेशली हम बोल सकते हैं ना कि सर उसका मतलब हम सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट को फंक्शनल ग्रुप्स के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट से जिसके स्ट्रक्चर में कीटोन फंक्शनल, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, एंड वी कैन डिवाइड इनटू अनदर पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैमिली इन विच एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो वी कैन यूज सफिक्स ओज and word aldo prefix aldo for the carbohydrates in which aldehyde functional group is present, and keto word we have to use prefix before the name of O's suffix for कीटोन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स. मतलब जितने कार्बोहाइड्रेट्स के जिसमें एल्डिहाइड है उन सभी के लिए हम स्पेशली बोल सकते हैं अल्डोज शुगर, अल्डोज, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एंड ओज सफिक्स इज यूजफुल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, सो वी कैन यूज द नेम अल्डोज शुगर. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स, एल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोल सकते हैं अल्डोज शुगर. And then after, the carbohydrates which possess ketone functional groups, especially not aldehyde but only ketone functional groups, then that for that type of specific type of carbohydrate we can use word ketose sugar, keto for ketone group and O's suffix ketose sugar. So mainly we can divide into two part for each and every carbohydrates. Either they are aldose sugar or they are ketose sugar. Ready? Aldose and ketose. So glucose, which has CHO functional group, glucose, we can draw the structure of glucose here. CHO, CHOH, COH, H, CHOH, CHOH, CH2OH. This is glucose. But you can see here, in this glucose, actually it is a polyhydroxyaldehyde compound, because in this glucose there are 1, 2, 3, 4 and 5 OH functional group is present, and especially one aldehyde functional group is present. So due to presence of aldehyde functional group in this carbohydrate molecule, we can say this is
aldose sugar. Glucose is aldose sugar because aldehyde functional group is present. Why? If we have fructose like a CH2OH, C double bond O, COH, H, CHOH, CHOH, CH2OH. It is a fructose. So you can see here in this fructose ketone functional group is present, so we can say it is a ketose sugar. मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है अगर उन सभी में कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स को आप बोल सकते हैं कीटोज शुगर। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उन सभी में शायद एल्डिहाइड होगा तो उसको आप बोल सकते हो aldose sugar. But we can further classify to this aldose sugar into different parts on the basis of number of carbons are present in that type of specific carbohydrate molecule. मतलब कार्बोहाइड्रेट में जितने कार्बन है मोनोसेकेराइड मतलब मोनोमर में जितने कार्बन है वो कार्बन के बेस पे भी हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे we have to use Greek word, let a Greek prefix like bi for 2 carbon, tri for 3 carbons, tetra for 4 carbons, penta for 5 carbons and hexa for 6 carbons. जितने कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है मोलेक्यूल में उसके बेस पे हमें ग्रीक वर्ड यूज करना है एज अ प्रीफिक्स फॉर द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर दिस इज द ग्लूकोज. इट इज एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज. So you can see this carbohydrate have one aldehyde functional group, then we have to use the suffix aldose for specific glucose, aldose sugar. It is aldose sugar, but there are 6 carbons are present, so we can use the prefix hexa. So it is word hexo. It is also known as hexose sugar. Glucose is one type of hexose sugar, and we can say glucose is aldohexose. Glucose is aldohexose because 6 carbons are present in this glucose. Similarly, this ketone fructose is known as keto because on the base of ketone functional group fructose is ketohexose because 6 carbons are present. So we have to use word hexa before the suffix ose. Prefix hexa, suffix ose, hexose. Ketone functional group is present in this fructose, so it is known as ketohexose. Glucose is aldohexose. Ready? So if some monomer or monosaccharide which have only 3 carbons, like you can write here CHO, CHOH, CH2OH, it is a glyceraldehyde. Glyceraldehyde is one type of monosaccharide in which aldehyde function group is present, so it is aldose sugar. But there are only 3 carbons are present, so it is known as aldotriose. aldo and ओज के बीच में आपको घुसाना होगा ग्रीक वर्ड ट्राई. सो ओज से पहले प्रीफिक्स में लिखना होगा हमें ट्राई बिकॉज देयर आर 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस aldose sugar. So it is one type of monosaccharide. This is the glyceraldehyde and it is known as aldotriose. अगर 4 कार्बन है तो aldotetrose. रिबोज सुगर होगा तो रिबोज सुगर में 5 कार्बन है मोनोसेकेराइड में तो वो कहलाया जाता है aldopentos. कार्बन में 6 कार्बन है तो aldohexose. Right? Similarly here in fructose there are 6 carbons are present, so it is known as ketohexose. In dihydroxyacetone the example is CH2OH, C double bond O, CH2OH. It is a dihydroxyacetone. It is one type of carbohydrate which has a sweet smell, but ketone functional group is present, so it is known as ketose sugar. But we have to use word tri before the name was O of O's, before the suffix. As a prefix we have to use tri because there are 3 carbons are present in this ketone containing carbohydrate. So it is known as ketotriose. So हम कह सकते हैं कि सर कितने भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, मेनली हम 2 टाइप के शुगर में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है हमारा aldose सुगर, दूसरा होता है हमारा कीटोस शुगर.
मगर अल्डोज शुगर में भी जितने मोनोसेकेराइड में कार्बन से उसके बेस पे हम बोल सकते हैं अल्डो बायोज अगर 2 कार्बन है, अल्डो ट्रायोज अगर 3 कार्बन है लाइक ग्लिसरॉल्डिहाइड, अल्डो टेट्रोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्सोज लाइक ग्लूकोज, अल्डो हेप्टोज. Similarly, if ketone functional group is present in carbohydrate family, then we have to use word ketobiose, ketotriose, ketotetros, ketopentose, fructose is ketohexose, dihydroxyacetone is ketotriose. So this is the nomenclature method for the acyclic, ये cyclic नहीं है, acyclic है, acyclic carbohydrates. तो यहां पे मैंने लिख दिया है बच्चों, we can divide into 2 parts. If CHO functional group is present, then they are known as aldose sugar. You can see here, it is aldose sugar. And if ketone functional group is present, so it is known as ketose sugar. It is a ketone functional group. Ready? But you can see here, the number of carbon atoms present in these compounds are indicated by Greek prefix by tri, tetra, suffix os. रेडी, सफिक्स हम यूज करेंगे ओस, तो हम बोल सकते हैं लाइक अल्डो बायोज, अल्डो ट्रायोज, अल्डो टेट्रोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्सोस. लाइक ग्लूकोज इज अल्डो हेक्सोस बिकॉज 1 aldehyde functional group is present in glucose and also 6 carbons are present in this monosaccharide, so it is aldo hexose. Ready? For glyceraldehyde there are 3 carbons are present and aldehyde functional group is present, so aldo triose. Same here, on the basis of carbon atom C6H12O6 fructose 6 carbons are present, so it is hexose, but ketone functional group is present, so it is ketohexose. Dihydroxyacetone C3H6O3, it is known as ketotriose sugar. अगर 4 कार्बन होते हैं तो कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मगर एक्चुअली प्रैक्टिकली आप जब जानोगे तो पता चलेगा, हम आगे भी देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एसाइक्लिक फॉर्म में नहीं मगर साइक्लिक फॉर्म में ही ज्यादा होते हैं, स्टेबल होते हैं. ग्लूकोज है ये एसाइक्लिक फॉर्म हमने लिख दिया है, फ्रुक्टोज का एसाइक्लिक फॉर्म हमने लिख दिया. एक्चुअली ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म होता है प्रैक्टिकली स्टेबल, एसाइक्लिक नहीं. ग्लूकोज साइक्लिक होता है. आप बोलोगे कि सर हमने पुराने स्टैंडर्ड में 9th 10th में ग्लूकोज देखा था तो ऐसा ही था. ये गलत नहीं है मगर ये अनस्टेबल फॉर्म है. एक्चुअली ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में देखने को मिलता है. तो तब साइक्लिक फॉर्म में कैसा स्ट्रक्चर होगा और उसे कैसे बोलते हैं, उसका नाम कैसे बोलते हैं, वो अब आगे देखते हैं. चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ हैविंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट इन अ साइक्लिक फॉर्म. Actually, a stable structure is cyclic structure, and this cyclic structure is given by Haworth and Hurst. Ready? हावर्थ एंड हर्ट्स दोनों ने मिलके हमें इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया है. सबसे पहले एमिल फिशर ने भी बताया था, मगर एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका साइक्लिक कैसा है वो हावर्थ एंड हर्स्ट प्रोजेक्शन से हमें देखने को मिले. मगर हम इसे ग्लूकोज बोलते हैं. ये अल्डोहेक्सोज शुगर है, ये फ्रुक्टोज है हमारा कीटोहेक्सोज, तो हम इसे अल्डोहेक्सोज भी बोल सकते हैं. देखिए अल्डोहेक्सोज जो हमने आगे देखा अभी, इसे हम बोल सकते हैं कीटोहेक्सोज. मगर यहां पे आप देखो, इट इज अ साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो द क्वेश्चन इज, सर आपको कैसे ये स्ट्रक्चर आपने हमें बना के डायरेक्टली बता दिया, अभी हमें कैसे बनाना होगा, कैसे याद रहेगा? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आपने डायरेक्टली बना के दिखा दिया, लिख दिया यहाँ पे, अभी हम कैसे याद रख सकते हैं, कैसे हमें बनाना होगा? मैं नहीं डायरेक्टली पता कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, टेंशन मत लो, ये मैंने अभी आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाया है, मगर आपको फ्रुक्टोज का सिर्फ यही स्ट्रक्चर याद रखना होगा. CHO, CHOH, COHH, CHOH, HOH, CH2OH, ये हो गया हमारा ग्लूकोज. ये वाला फ्रुक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COHH, CHOH, CHOH, CH2OH, glucose. Both of these have a similar molecular formula, but structural formula are differ from each other, and they are differ from each other by the functional group, so they are known as functional group isomers of each other. ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपको पहले अपने जहन में बिठाने होंगे. शायद आपको आता भी होगा, अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट हो तो ठीक है, तो मुझसे भी ज्यादा आपको पता होगा. मगर अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो आपको ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एसाइक्लिक फॉर्म याद रखने होंगे. अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो ये स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में से साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा योग्य समय पे. ठीक है, प्रॉपर टाइम आने के टाइम पे मैं आपको ये दिखा दूंगा.
कि कैसे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एसाइक्लिक में से। मगर मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि ये हो गया हमारा ग्लूकोज। आपको होगा कि सर ये 6 कार्बन यहां से कहां गए, दिख तो नहीं रहे, मैं दिखा देता हूं। ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स। देयर आर 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस साइक्लिक कंपाउंड एंड हियर 6 membered ring is present in cyclic glucose, but in this 6 membered ring 5 members are carbon and 1 is oxygen, so it is a heterocyclic compound. And in this fructose, this is the first carbon, second one, third one, fourth one, fifth one and sixth one. There are 6 carbons also present in this fructose, and this is the 5 membered ring in which 4 members are carbon and fifth one is oxygen. It is also a heterocyclic compound. ये दोनों के दोनों साइक्लिक है, ग्लूकोज भी साइक्लिक हो गया, फ्रुक्टोज भी साइक्लिक हो गया। मगर हम अगर साइक्लिक फॉर्म के बारे में बात करते हो, हम इसे बोलते हैं आल्डोहेक्सोज, इसे बोलते हैं कीटोहेक्सोज। मगर साइक्लिक फॉर्म है तो हमें क्या बताना होगा इसको। देखिए मैं आपको वापस बोल देता हूं, ये साइक्लिक फॉर्म मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया है। आपको ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखना होगा मगर याद नहीं रखना है, बनाना होगा। कैसे बनाना है, डायरेक्टली हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे इसको यूज करना होगा, सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा, मगर जब भी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बगल में दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं और बाद में आप मुझे बताना कि इनके जैसा लगता है या नहीं। यहां पे मैं लिख देता हूं CH2 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 CH2। I'm sorry, it is not CH2, it is a CH double bond, CH double bond. Okay, so you can see here, this cyclic glucose is look like this organic compound, cyclic organic compound, heterocyclic compound. अब देख सकते हो ये साइक्लिक ग्लूकोज है, इसके जैसा लग रहा है, ये नहीं है मगर इसके जैसा है। अब ये ऑर्गेनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसे बोलते हैं पायरेन। पायरेन, ये पायरेन है। तो ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरेन के जैसा दिखता है, तो हमें ग्लूकोज को ऐसा बोलना है, ग्लूकोज मतलब ग्लूको पायरेनोज। पायरेन जैसा स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, तो उसे बोलते हैं ग्लूकोपायरेनोज। और ये फ्रुक्टोज का जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हमें दिखता है कुछ ऐसा। इट इज ऑल्सो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज फ्यूरान। ये फ्यूरान नहीं है, देखिए ये साइक्लिक फ्रुक्टोज है वो फ्यूरान नहीं है मगर फ्यूरान जैसा दिखता है, तो इसे बोलते हैं फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज है उसे बोलते हैं ग्लूकोपायरेनोज एंड फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर उसे बोल सकते हैं फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। रेडी? सो दिस इज द नोमेनक्लेचर मेथड ऑफ एसाइक्लिक aldose and ketose sugar. It means carbohydrate, and cyclic carbohydrate like cycloglucose, it means cyclic glucose and cyclic fructose. So let's start the first point of the carbohydrate, and that is the monosaccharide compound. हमें बच्चों डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये सेम के लिए मतलब ये ईयर में देखना नहीं है क्योंकि गुजरात बोर्ड ने ये निकाल दिया है। ठीक है, तो सिर्फ हम मोनोसैकेराइड के बारे में ही पढ़ेंगे, ग्लूकोज देखेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रूव करेंगे, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी प्रूव करेंगे। वो टाइम पे हम बनाने वाले हैं कि कैसे एसाइक्लिक में से साइक्लिक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज एंड प्रिपेरेशन ऑफ ग्लूकोज। So my dear students, let's start the monosaccharide. Actually, monosaccharide is the simplest form of carbohydrate which cannot further hydrolyzed in the simpler form of carbohydrate. मतलब अगर हमारे पास कोई मोनोसैकेराइड है तो हम आगे हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोलाइज करके उससे भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, ये मोनोसैकेराइड को यूज करके हम डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बना सकते हैं। मगर जितने भी डाइसैकेराइड मींस ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है उसको हाइड्रोलाइज कर करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम मोनोसैकेराइड तक आ सकते हैं। सो monosaccharide generally mainly two common monosaccharides are known as glucose and fructose. So our first monosaccharide is glucose. Actually glucose, we can obtain the glucose mainly from fruits. Ready? So present in ripe fruits, honey and grapes contain 20 to 25% glucose. It means from fruits mainly the main source of glucose is grapes. So the glucose is also known as grape sugar. Ready? Grape sugar. Glucose is also known as dextrose. Listen carefully. Glucose is also known as dextrose. Ready? So
So grapes contain 20-25% glucose, so it is known as grape sugar. It is also present in human body and urine, human blood and urine, but in fixed amount. फिक्स अमाउंट में होता है. अगर ज़्यादा बढ़ जाता है यूरिन में या तो ब्लड में, अगर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो जो इंसान है वो शुगर पेशेंट हो गया, मतलब डायबिटिक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ हो सकती है. ठीक है, तो कोई भी पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा मैटर है, उसमें सिर्फ ग्लूकोज या तो ब्लड में या तो यूरिन में ग्लूकोज का जो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, वो अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो समझ लेना है कि उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने की वजह से वो डायबिटिक पेशेंट है. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. We will see the preparation of glucose from two different compounds. First one from the sucrose, it means cane sugar, and second one from starch. So first one is preparation of glucose from cane sugar. Cane sugar, it means C12 H22O11. It is known as sucrose. Sucrose जिसे हम टेबल शुगर भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो हम चीनी बोलते हैं रूटीन लाइफ में, हम जो खाने में यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो होगा हमारा सुक्रोज. सबसे ज़्यादा यूजफुल यही है सुक्रोज. सो फ्रॉम सुक्रोज हाउ कैन वी प्रिपेयर ग्लूकोज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to hydrolyze this sucrose in presence of acid catalyst like HCl. So C12H22O11, it is a sucrose. When we hydrolysis by H2O, when we hydrolyze this sucrose in presence of acid catalyst HCl or H2SO4 catalyst, in presence of acid catalyst, when we hydrolyze this sucrose molecule, sucrose by hydrolysis, we can obtain two different products. C6H12O6, it is a glucose, and second one C6H12O6, it is a fructose. In this preparation, it means in this the preparation of glucose, we have to use alcohol solvent. बच्चों ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, हमें यहाँ पे अल्कोहल एज अ सोलवेंट यूज करना है. क्यों? बिकॉज सुक्रोज इज सोल्यूबल इन अल्कोहल as it is fructose is soluble in alcohol. You can see here sucrose is soluble in alcohol, fructose is soluble in alcohol, but glucose is insoluble इन अल्कोहल. तो अब क्या होगा? जैसे हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अल्कोहल सोलवेंट यूज करके, तो आफ्टर प्रिपरेशन वी कैन गेट द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बट इन दिस रिएक्शन मिक्सचर we have solvent alcohol and prepared glucose will precipitate out from the reaction mixture due to the insolubility in alcohol. ये ग्लूकोज अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं है और फ्रुक्टोज होगा जो अल्कोहल में सोल्यूबल है. तो जैसे जैसे ये रिएक्शन करोगे आपको रिएक्शन मिक्सचर में कुछ प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे. वो प्रेसिपिटेट होंगे सिर्फ ग्लूकोज के, क्योंकि वो अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं है, और फ्रुक्टोज तो सोल्यूबल हो जाएगा. अभी क्या होगा कि जैसे आप रिएक्शन में कंप्लीशन की ओर जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तब बाहर से एक्स्ट्रा आपको ग्लूकोज ऐड करना है. व्हेन वी ऐड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन दिस प्रोडक्ट साइड, देन almost glucose molecules will precipitate out from the reaction mixture, and after filtration we can separate out the crystals of glucose. रेडी? तो ये बात मैं जितना भी मैं बोल रहा हूं ये आपको दिमाग में बैठानी होगी, और अगर रिएक्शन को पूछी जाती है एग्जाम में तो लिखना भी होगा ये बात को कि in this reaction mixture we have to add extra alcohol after the reaction because these glucose molecules are insoluble. So due to the addition of alcohol, reaction will goes on forward direction and this glucose molecule will precipitate out from the reaction mixture, and after filtration we can separate this glucose molecules from the reaction mixture, and fructose will remain in form of soluble form in this reaction mixture, because here in this reaction mixture we used
alcohol as a solvent, and fructose is alcohol soluble. Ready? So our next preparation of glucose is from starch. Actually, starch is one type of polysaccharide, and the molecular formula of starch is C6H10O5 n times, because it is one type of polymer. And we have to add n mole of H2O. थोड़ी टिपिकल रिएक्शन होगी क्योंकि हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है पॉलीसेकेराइड के, नहीं के डाइसेकेराइड का। ये तो सिर्फ डाइसेकेराइड था, दो मोनोसेकेराइड को अलग करना होगा, और यहाँ पे तो बहुत सारे ग्लूकोज मोलेक्यूल एक साथ जुड़ के पॉलीसेकेराइड डेवलप कर दिया है स्टार्च, मतलब ये मैक्रो मोलेक्यूल है। अब ये मैक्रो मोलेक्यूल का हमें करना होगा हाइड्रोलिसिस in presence of 393 Kelvin temperature and 2 to 3 bar pressure. Hydrolysis in presence of H2SO4 catalyst, acid catalyst. Then n mole of H2O will react with the sucrose and break the bonds between the monosaccharides and form n mole of glucose, C6H12O6 glucose. बच्चों हमें यहाँ पे ग्लूकोज तो मिल गया, चलो, मगर हमने यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट डाला है H2SO4. So if we add H2SO4 as a catalyst and after completion of reaction we have to remove the concentration of H2SO4. हमें यहाँ से H2SO4 को निकालना होगा, तो क्या करना होगा? After this reaction to neutralize this H2SO4, बिकॉज हमें यहां से निकालना होगा इससे, तो हमें इसको न्यूट्रलाइज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? टू न्यूट्रलाइज H2SO4 वी हैव टू ऐड कैल्शियम, लिसन केयरफुली, कैल्शियम कार्बोनेट इन दिस रिएक्शन मिक्सचर। तो क्या होगा? हमारा जो H2SO4 होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CaSO4 में डेवलप हो जाएगा एंड H2O प्लस CO2 फॉर्म में यहां से बाकी का जो एक्स्ट्रा H2O है और CO2 है वो इवोपरेट हो जाएगा, एंड दिस कैल्शियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल, so it will precipitate out from the reaction mixture, so we can neutralize this H2SO4, extra amount of H2SO4 in this reaction mixture by the addition of calcium carbonate, and due to the addition of calcium carbonate, this H2SO4, extra amount of H2SO4 will neutralize and form calcium sulfate, and this calcium sulfate is water insoluble, so it will precipitate out from the reaction mixture and we can get the maximum amount of glucose, pure glucose. मगर हमें अभी ग्लूकोज को यहाँ से प्रेसिपिटेट आउट करना होगा एक्स्ट्रा, तो अब क्या करना होगा? अगर हमारे पास ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, अगर इसमें कोई कलर की इंप्यूरिटी रह गई, तो कलर की इंप्यूरिटी को रिमूव करने के लिए हमें उसमें चारकोल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। चारकोल ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना, ये जो रिएक्शन मिक्सचर होगा हमारे पास, मतलब ये जो ग्लूकोज होगा, ये जो सोल्यूबल फॉर्म में ग्लूकोज होगा, इसमें हमें डालना होगा चारकोल पाउडर को डालो और इसको हीट करो। अब जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो चारकोल और साथ में स्टरिंग भी करना होगा। इसमें चारकोल पाउडर डाल दो, ग्लूकोज भी है, सॉल्यूशन है, कलर की इंप्यूरिटी शायद होगी उसमें, तो हम चारकोल डाल के, एक्टिवेटेड चारकोल डाल के हमको इसको हीट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को। तो चारकोल है वो, उसकी सरफेस है वो बहुत ही एक्टिव होती है और जो कलर की इंप्यूरिटी है उसको चारकोल की सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेती है। So all the coloring impurities of the reaction mixture will adsorb on the surface of charcoal. And after filtration, that reaction mixture, after charcoal treatment, the coloring impurities will remove from the reaction mixture. तो वो कलर की इंप्यूरिटी होगी वो भी चली जाएगी, तो हमारे पास जो भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा वो प्योर ही होगा। उसके बाद हमें वो रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कॉन्सेंट्रेट मतलब जो भी ये सॉल्यूशन है उसको और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो, और जितना भी सॉल्वेंट है उसको इवोपरेट कर दो, तो बाकी जो वेसल में बचेगा वो बचेगा क्रिस्टलाइन मोलेक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्रिस्टलाइन फॉर्म बचेगा, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेट आप करोगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिमूव करके, कलर इंप्यूरिटी रिमूव करने के बाद जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ग्लूकोज आपको इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि सॉल्वेंट इवोपरेट हो जाएगा।
and we can prepare the crystals of glucose by this process. Ready? So these are the preparation of two methods for the preparation of glucose. So my dear students, we complete the preparation of glucose and we complete the nomenclature method of carbohydrate compound, and we will discuss the next topic in our next lecture, and that is the structure of glucose, prove the structure of acyclic structure of glucose. Ready? So till that second lecture, goodbye, take care, and Jai Shri Krishna.